پاکستان کے سیلاب متاثرہ عوام سے دلی ہمدردی ہے۔ پوری دنیا کو متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا سیلاب متاثرین کی داد رسی کے لیے دورہ پاکستان NFRCC میں خطاب کیا۔ کہتے ہیں امدادی کارروائیوں میں مصروف افراد کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، لاکھوں متاثرین کو کھانا اور امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا اولین ترجیح تھی۔ اس سے قبل سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی وزیر اعظم ہاؤس آمد ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو سمیت وزراء نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ انتونیو گوترس سیلاب متاثرین سے بھی ملیں گے۔ We know that our contribution is limited. We know that what we do is a drop in the ocean of the needs, but we are totally committed. And Pakistan is a country that I have in my heart. I would like to express my enormous appreciation in this coordination center to all those women and men that have been working tirelessly to support the victims of this unprecedented natural disaster. To provide relief and rescue to these millions of people, to be very exact, 33 million people are absolutely in dire conditions in the entire country. As we speak, efforts are in full gear. People are being removed to safe places, food and shelter being offered. مسنگ پرسن بازیابی کے لیے دائر درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ لاپتہ افراد بہت بڑا ایشو ہے۔ ریاست کا وہ رد عمل نہیں آ رہا جو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ ایک بھی شخص اگر لاپتہ ہوتا ہے تو چیف ایگزیکٹو براہ راست ذمہ دار ہے۔ یہ ایک دوسرے پر الزامات کا نہیں بلکہ خود احتسابی کا وقت ہے۔ حکومتی کمیٹی کو 2 ماہ کا وقت دے دیا۔ سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ لاپتہ افراد کمیٹی کی خود سربراہی کروں گا۔ جو رپورٹ پیش ہوگی کہانی نہیں بلکہ حقائق پر مبنی ہوگی۔ گزشتہ 4 سالوں میں مجھے 2 بار جیل میں ڈالا گیا۔ اس ملک کی عدالتوں کو جواب دہ ہوں۔ جسٹس ڈکٹیٹر کی بات ہو رہی ہے۔ میں اور میرا بھائی بھی اس کے متاثرہ ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں جانب سے دفاعی سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک امریکہ 2 طرفہ روابط کثیر الجہتی شعبہ جات میں پائیدار تعلقات کی روایت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ عالمی شراکت داروں کی امداد سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی میں اہمیت کی حامل ہوگی۔ وفد کے ارکان نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے امریکی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے USAID کے ایڈمنسٹریٹر سمانتھا پاور کی دفتر خارجہ میں ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ نے ایڈمنسٹریٹر USAID کو پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور حکومت کی جانب سے بحالی اور امداد کی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے $30 ملین کی امداد پر USAID کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے USAID کے ایڈمنسٹریٹر کی دفتر خارجہ میں ملاقات ہوئی ہے اور وزیر خارجہ نے ایڈمنسٹریٹر USAID کو پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور حکومت کی جانب سے بحالی اور امداد کی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کا 24 نیوز کی خبر پر ایکشن۔ حیدرآباد میں اہم کاروباری مرکز آٹو بھان کی سڑک کا تعمیراتی کام شروع کرا دیا گیا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے تعمیراتی کام کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 24 نیوز نے رواں ہفتے آٹو بھان روڈ کی بارشوں کے باعث تباہ حالی کی خبر نشر کی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کا 24 نیوز کی خبر پر ایکشن بات کر لیتے ہیں۔ علی حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بتائیے گا۔ نشر کی کہ حیدرآباد میں جو بارشوں سے تباہ حالی ہوئی ہے تو اس میں حیدرآباد کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے نوٹس کیا ہے
और जहाँ पर 24 उन्होंने निशानदही की काम शुरू कर दिया है, हैवी सर्जरी के जरिए शामिल करने का फिर से काम किया जा रहा है। हमारी हजरात कुछ नजर आ रहे हैं कि जो शहरी हैं गुजरते हैं वो। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। शहीद बेनज़ीराबाद के घोट रहीम दास शाही में पानी का लेवल कम होने लगा। खैमों में क़याम पजीर स्कूल टीचर जन्नत बीबी कहती हैं, बारिशी पानी ने सब कुछ तो उजाड़ दिया, लेकिन तदरीसी सरगर्मियों की बहाली के लिए ज़ाती हैसियत में कोशां है। इसी पर बात कर लेते हैं, अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा। रहीम दास शाही में मैं मौजूद हूँ, जहाँ बाहिम्मत खतून है जो एक स्कूल टीचर है और उसका घर जो है मुकम्मल तौर पर टूट चुका और यहाँ से बहुत दूर वो जाती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। उनकी खुद 3 बेटियां हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी आप, यहाँ से स्कूल जाती थी, बच्चों को पढ़ाती, अब तो अपने घर में पानी आ गया। यस सर, अब मैं क्या करूँ, मेरे घर का भी यही हाल है, स्कूल का भी यही हाल है। स्कूल आई थिंक कि बहुत पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है और स्कूल मेरे से 1 किलो से 1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने के लिए अब तो कश्ती की ज़रूरत है। हमेशा बच्चों को दर्स आपने इस चीज़ का दिया है कि लोगों की मदद करना है और लोगों के काम आना है। आज एक टीचर होने के नाते कोई मैसेज देना चाहती हैं उन लोगों को जो तलबा भी हैं और वैसे पढ़ भी चुके हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को, कोई भी अमीर शख्स हो चाहे वो गरीब हो, तालीम बच्चों के लिए तमाम ज़रूरी है। इस पानी में खड़े होके भी आप तालीम की बात कर रही हैं, बाहिम्मत हैं और आप ये दर्स दे रही हैं कि अगर आपको यहाँ से अगर कोई चीज़ मिले तो आप अभी भी तालीम हासिल मैं अभी भी तालीम, अभी भी, क्योंकि घर हो सकता है। ऑल थिंग इज डिपेंडेंट ऑन द बेस एजुकेशन बेस। अगर बेस है, तालीम की बुनियाद है, तो वो आगे बढ़ेगा। घर तो कभी भी बढ़ेगा, बनेगा, जुड़ेगा, टूटेगा। तालीम तो बुनियाद है। बच्ची अगर 5 दर्जा पढ़ेगी, आगे पढ़ेगी, एक उम्र है बच्चियों की, एक उम्र है, पढ़ाई की एक उम्र है। हालांकि कहा जाता है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, लेकिन उम्र है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। उनका ये कहना है कि मैं एक अपने तौर पर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि घर फिर बन जाएंगे, सैलाब भी सिलसिला चलता रहेगा, ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन तालीम जो है वो ज़रूरी है। वो अब भी बाहिम्मत और अब भी ये रखते हैं कि अगर हुकूमत या इंतज़ामिया उनको वो चीज़ें मुहैया करे तो वो बच्चों को जो है वो यहाँ पे तालीम दे सकती हैं। और अपना घर जो उसका डूब चुका है, लेकिन उसके बावजूद बच्चियों समेत वो इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंचर झील के पानी ने सहवन शरीफ के नवाही देहात को डुबो दिया है। पाक फौज ने सिला मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन बताएगा। जी, सिंध के इलाकों के मुकीनों की मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एक और इलाका इस वक्त मंचर झील के पानी से अफेक्ट हुआ है। एक तरफ सिंध का दरिया का पानी लोगों को वहाँ से नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरी तरफ उसके अपोजिट मंचर झील इस वक्त पानी से कई इलाकों को अफेक्ट कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बूबक बस्ती में, जो कि इस वक्त ज़ेरे आब आ गई है। सेवन के इलाके को इस वक्त आन घेरा है बेरहम पानी ने, जो कि मंचर झील से छोड़ा गया था। तो ये पानी की बेरहम मौजों ने इस वक्त कई बस्तियाँ, कई घर इस वक्त पानी की नज़र हो चुके हैं। पानी ने इस वक्त हर तरफ तबाही मचाई हुई है। जहाँ जहाँ नज़र जा रही है, ये एरियल व्यू से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर पानी ने इस इलाके को हर तरफ से घेर रखा है। ये मंचर झील का सिर्फ पानी है, जो कि सेवन से कुछ किलोमीटर के फासले पर बोबक और इस जैसी सैकड़ों आबादियों को अफेक्ट कर रहा है। सिर्फ ये आबादियों का मसला नहीं, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर कई फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। तो इस वक्त जो फसलों का नुकसान हुआ है वो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली जो फसल थी वो कपास की फसल थी, और कपास बिल्कुल मलिया मेट हो गई है। उतरने वाली कपास जो कि किसान के ख्वाब पूरे करने वाली थी वो कहीं नज़र नहीं आ रही। मैंने पीछे देखा कि भेड़ बकरियां कपास खा रही हैं। मेरे साथ बैठे
लोग इस वक्त सामने अपने घरों को बेबसी की हालत में देख रहे हैं कि उनके घर उनके सामने तबाह होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये मंचर झील ने आकर इस इलाके को, ऐसे इलाके को जो कि सेव इलाका था, जो कहा जा रहा था कि ये इलाका सैलाब की नज़र नहीं होगा क्योंकि एक तरफ बंद के दरिया सिंध का पानी था तो दूसरी तरफ ये सेव इलाका था, लेकिन इसको मंचर ने आके अफेक्ट किया है। कोई इलाका, कोई जगह इस वक्त पानी की बेरहम मौजों से नहीं बची हैं, हर तरफ पानी है। लोग रो रहे हैं, अपना आसरा होकर इस वक्त आंखों से आंसू आते दिखाई दे रहे हैं, सामने देख रहे हैं अपने घर को, रो रहे हैं इस वक्त। क्या हुआ है? सिर्फ मेरा घर नहीं है। घर गया? घर नहीं है, कोई सहारा नहीं था हमारा, कोई सहारा नहीं था। कैसे आए वहां से? मजबूर आए थे, सामान उधर, बस मजबूरी से निकले हैं हम। क्या होगा आगे? क्या खाएंगे? सोचा था कभी ऐसे होगा? नहीं होगा, नहीं, खुदा की कसम नहीं सोचा था। सामने घर को देख रहे हैं बेबस, हाँ बस, ना जा सकते हैं ना बचा सकते। नहीं सही नहीं जा सकते सर, पानी बहुत है, पानी का अंदाजा नहीं सर, पानी कितना था, मंचर को इंच दूसरे 2 इंच भी नहीं रहा था। बच्चे साथ हैं? हाँ बच्चे साथ हैं सर, मच्छर मक्खी बीमारी बेबस इस वक्त सिंध अपने घरों को डूबते हुए देख रहा है और पानी बेरहमी से अंदर आ रहा है और कोई इस नेचुरल डिजास्टर्स को से ना तो इन लोगों को बचा सक रहा है और ना ही ये लोग अपने बचा सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, साबिक गवर्नर चौधरी सरवर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनके सर पे शक देने के लिए अब हमें रकम हम आपको नहीं अदा कर सकते, आपको हमें उस पेमेंट को सस्पेंड करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह मैं भी जहाँ तक मुमकिन है अपने जो इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं वो इस्तेमाल करूँगा। तो माशाल्लाह मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत ही मशकूर हूँ कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, लेकिन एक बात मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूँ और बहुत से लोग हैरान भी होते हैं कि जब भी मैं किसी प्लेटफार्म पे जाता हूँ तो मैं सिर्फ सरवर फाउंडेशन का जिक्र नहीं करता, मैं तमाम जमातें जो हैं काम कर रही हैं उनसे बात करता हूँ और मैं सबसे कहता हूँ कि माशाल्लाह ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं क्रेडिबल हैं, इंटीग्रिटी के साथ हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। इन सब को सपोर्ट करें, सरवर फाउंडेशन को भी करें, लेकिन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी अखुवत है माशाल्लाह जो है अल-खिदमत फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, LIHS बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, तो इसके साथ आप सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे ताउन करें और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क की ये जमातें जो हैं 100% जो हैं काम जो है मेरिट पे करेंगी और हम इंशाअल्लाह लोगों की खिदमत में पीछे नहीं रहेंगे। और मैं बैतुस्सलाम का असल में हमें उन लोगों को देखना है जो ट्रेंचेस में महाज पे जाके लड़ते हैं, सोल्जर हैं, तो जो बैतुस्सलाम के वर्कर्स हैं और हमारे पाक अफवाज के और रेंजर्स के जो जवान हैं जो फ्रंट लाइन पे जाके लोगों को तकसीम कर रहे हैं, हमें उनको ट्रिब्यूट पे करना है, उनको हमने शाबाश देनी है। और आज जिन वर्कर्स को मैं मिल के आया हूँ जो माशाल्लाह इस गर्मी में ये चीज़ें पैक कर रहे हैं, उनको हमें ट्रिब्यूट पे करना है। डोनेशन देने से ज़्यादा काम ये है जो फुट सोल्जर हमारा कर रहे हैं। तो हम इंशाअल्लाह हम एक कौम बन जाएं, हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हम इस बहरान से निकल आएंगे। और मैं पाकिस्तानी कौम से, अपने जो भाई हमारे मुतासरीन हैं उनसे वादा करता हूँ कि अगले 4 महीने 6 महीने दिन रात 24 घंटे 20 घंटे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हाईलाइट करने के लिए इशू मैं दिन रात, मेरा कोई और एजेंडा नहीं है। नेक्स्ट 4 to 6 मंथ सिर्फ और सिर्फ सियासत से बाला होकर स्टूडियो से फिल वक्त इतना।